Good afternoon. Welcome my Insta family. हमारे एक नए लाइव के साथ, एक नए गेस्ट के साथ. I am waiting for my guest. My guest is about to come. Zahida Tabassum. I am sending her request. अब हमारा आज का टॉपिक मेंटल वेलबींग से रिलेटेड है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो देन प्लीज वेलकम माय स्वीट गेस्ट. हाय. Hi, How are you? Assalamualaikum, Kamal. I am great. How Walaikum are you? assalam. Fine. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I am very good. Fine. Today we have special guest Zahida Tabassum. I am super duper excited to have you, Zahida, on my Insta live. Thank you. Can you introduce yourself a little bit? Okay. So I am by profession, I am a strategic IT leader, and by passion, I am a coach for narcissistic abuse and trauma recovery. Also, I am a public speaker for mental well-being and women leadership. So that's about me. And also, I am a champion in my organization Yes. for employee well-being. Yes. So yeah. She has a champion for employees' well-being, spearheading multiple initiatives in her organization. She is such an awesome person. And if you people have any mental issues, so type one that issue in the comment section. Okay, I have so many questions today for you. Welcome Okay. again in my live. Thank So, you. thank you so much. My first question to you is, how do you handle that negative emotions, जो negative self talk जो हम करते हैं, Okay. कैसे कर सकते हैं हम handle? Okay. So my question to you is, first of all, what do you classify as a negative emotion? क्योंकि negative emotion if we have तो then it's from somebody, है ना? क्योंकि खुद ही तो हमें आता नहीं, किसी ने कोई पोक किया हमें तो then I got that या we got that negative emotion. मुझे तो उन लोगों पे पहले तरस भी आता है कि कितने सिली हैं ये लोग, कितना क्यों क्या इसकी जरूरत थी. मैं अक्सर ये बोलती हूँ, क्या अभी इतने टोन, क्योंकि हमेशा टोनैलिटी पे हम बात करते हैं, क्या इस टोनैलिटी की जरूरत थी अभी? ये वाला आंसर तो हम सीधे से भी दे सकते थे. तो मुझे उन पे तरस भी आता है और अपने पे गुस्सा आता है, क्यों पूछा था, छोड़ दिया होता. तुम्हें तो पता था कि इन्होंने ऐसे ही डील करना है. राइट. तो हमारे साथ जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग टैग कर देते हैं एज नेगेटिव इमोशन, एंड कुछ भी अच्छा होता है तो वी टैग इट एज अ पॉजिटिव इमोशन. बिल्कुल. बट एक्चुअली लाइक या तो नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन या गुड इमोशन एंड बैड इमोशन, समथिंग लाइक दैट वी टैग इट एज. But actually, there is no positive or negative emotion. There is only deep and shallow emotion. Okay. बिल्कुल. क्योंकि एज पर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि आपने बोला अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो इट्स वेरी नेचुरल टू फील समटाइम्स एंगर, हर्ट, betrayal. So all these emotions are very natural and very normal, and all these emotions have a very deeper meaning. So it is very important to self regulate ourselves. बिल्कुल. सच में वेल सेड. सच में हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन वही करना नहीं कोई चाहता है.
हम Right. रेगुलेट वो करना ही नहीं चाहते हैं। वेलकम साइमा इन माय इंस्टा लाइव। तो if you have any questions, so then please type in our comment section and Zahida will definitely answer your question. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यही जो आपने बोला कि इस इमोशन को हमें रेगुलेट करना चाहिए, क्यों और कैसे हम, why is it necessary, क्यों ये जरूरी है कि उस इमोशन को हम रेगुलेट करें उस Right. तो इट इज वेरी एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू सेल्फ रेगुलेट आवर इमोशंस, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, एंड all these emotions have very deeper meaning and we need to get down to the deeper meaning. What is the meaning behind this? Okay, why are we actually getting this? And only when we understand and listen to it, just like Bollywood या Hollywood के movies आपने देखे होंगे, हॉरर मूवीज, उसमें भूत कब वो चला जाता है, जब हम उसकी बात सुन लेते हैं, कोई ना कोई वो स्टोरी सुनाने आता है, ठीक है, उसका कुछ उसके साथ हादसा हुआ होता है, वो कुछ बोलना चाहता है आपको, जब सुन लेते हैं हम उसकी बात, वो घोस्ट जो है चला जाता है। उसी तरह ये इमोशंस हमको कंटिन्यूअसली हॉन्ट करते रहते हैं तब तक जब तक हम इसकी बात नहीं सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं हमें, क्या डीपर इनके मीनिंग है। जब हम एक बार सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, उस पर हम लोग एक्ट करते हैं, तब ये फीलिंग्स चले जाते हैं। बट अगर हम लोग बहुत टाइम तक, क्या होता है, हम सोचते हैं इसको, जब हम लोग लेबल करते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव या गुड और बैड, तो ये नेगेटिव या सो कॉल्ड बैड इमोशंस को जो है हम दबाते रहते हैं, या फिर सोचते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, हम लोग फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या गुस्सा हो रहे हैं, हम खराब सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो ये हम बुरे इंसान बन रहे हैं, हम लोग किसी को उल्टा जवाब दे रहे हैं, एंगर किसी पे रिलीज कर रहे हैं, तो हम बुरे इंसान हैं, हम जो है इसको दबाने की कोशिश करते हैं, या गलत कुछ बात आता है किसी के बारे में तो हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म तक हम इसको दबाते हैं विदाउट सेल्फ रेगुलेटिंग, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को तो तबाह करता ही है लॉन्ग टर्म में, और ये हमारे फिजिकल हेल्थ को भी ये जो है खराब करने लगता है। जैसे कि आई हैड ऑलमोस्ट 2 years बैक आई हैड अ वेरी सीवियर डाइजेस्टिव हेल्थ इशू, आई वॉज नॉट एबल टू ईट नॉर्मली, मैं तरस गई थी इवन अपने फेवरेट खाना खाने के लिए, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ सीवियर स्ट्रेस, फियर, वरी, एंड ऑल्सो इसी तरह से डायबिटीज, थायराइड एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस भी जो है डेवलप होने लगते हैं, जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड हम लोग इसको एड्रेस नहीं करते हैं, सेल्फ रेगुलेट नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन रिलाई विद दिस। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आफ्टर माय मदर्स डेथ, कि कितना वो जो डिप्रेशन में, कितना मेरा गट हेल्थ जो है कि कितना डिस्टर्ब था, कितनी दवाइयाँ, क्या क्या नहीं किया था। लेकिन वंस आई दैट अपनी सेल्फ जर्नी में मैंने जो सबसे पहले मैंने वज़्ज़ुहा पढ़ना शुरू किया था, उस वज़्ज़ुहा ने फिर मुझे, कि ये तो रसूल करीम पढ़ते थे जब उनको स्ट्रेस था, जब दूसरी बार वही नहीं आ रही थी, तो मैंने भी वही स्टार्ट किया और टिल डेट मैं पढ़ती हूँ। राइट, इन चीजों ही मुझे सो फिर ठीक करा था। देर इज अ दुआ एक्चुअली फॉर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड वरी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेस्क्राइब किया था, वो हर सुबह और शाम को पढ़ते थे। तो यस, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। Can you mention that dua? Allah, I don't remember it by heart, but it is something like Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni, इससे स्टार्ट होता है ये। हज़नी वल अज्जी वल कसली वल बुखली वल जुबनी राइट, यस। राइट, तो मैंने वो लगा के रखा हुआ है अपने रूम में स्टिकी नोट में, तो हर सुबह और शाम में पढ़ती हूँ ये। बिल्कुल, No, and it is very powerful, and वेरी that is actually the beginning of my mental well-being journey, and उससे मैं आज रीच हुई इस जगह पे कि मैं अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया लेवल पे, जो कि एक एमएनसी है, ग्लोबल एमएनसी है, आई एम वर्किंग, तो इंडिया लेवल पे मैं इनिशिएटिव ड्राइव कर पा रही हूँ, एंड ऑल्सो टीम लेवल पे माय मैनेजर हैज आस्क्ड मी टू गिव टॉक्स मंथली, सो आई एम डूइंग दैट एंड इंस्पायरिंग अदर पीपल, सो good. यस, एंड You are doing such a fabulous job, and you are an inspiration for all of us. thank you. More, So more we power to need, you. thank you so
much. So this self-regulating is not only beneficial for our present but also for our future. यस, बहुत अच्छा बोला आपने। और तो यही जो ये डिफिकल्ट इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है, तो हाउ टू हैंडल दिस डिफिकल्ट और नेगेटिव इमोशन? यस, सो वी नीड टू befriend it. जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम पूछते हैं, सुनते हैं विदाउट जजमेंट। एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है, विदाउट जजमेंट सिर्फ सुनता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जज नहीं करता है। कुछ डिस्कम्फर्ट होता है हमारे बॉडी में तो हमको वो सुनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो मेंटल चैटर्स चल रहे होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि क्या इमोशन चल रहा है। जैसे रिसेंटली एक मेंटल वेलबींग का सेशन हुआ था हमारे यहाँ, तो उसमें पूछा व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग, तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग, neither पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, आई वॉज फीलिंग नम। तो कभी कभी क्या होता है, हम बॉडीली सेंसेशन पे जब हम ध्यान देते हैं, तो उन्होंने बताया बॉडीली सेंसेशन, कुछ कुछ बताया सैडनेस का। तो जब मैंने वो देखा तो आई अंडरस्टूड एक्चुअली आई एम फीलिंग दिस सैडनेस, वो एग्जॉशन वगैरह सब कुछ जो है सैडनेस की वजह से हो रहा था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, बी क्यूरियस कि क्यों आ रहा है, आस्क योर सेल्फ, सिट विथ योर सेल्फ, सेट असाइड ए टाइम, ताकि जो है दिन भर जो हम जो है अपना जाया नहीं करें, हमारे दिन भर का काम जो है हैम्पर नहीं हो। सेट असाइड अ टाइम to think about it and be curious, ask yourself why you are feeling this feeling, have compassion and kindness towards yourself. Yes, and be with it till it feels seen, heard and validated, and then automatically we will be able to understand this. And कुछ and try to understand the deeper meaning. जैसे anger जब होता है, it generally means कि जो है हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है इस बंदे से वो फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है, या फिर हमारे वर्ड से जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हुए हैं। जेलसी होता है तो इसका मतलब है कि हमको नहीं पता एक्चुअली हमको क्या चाहिए, तो अल्लाह ताला या ऊपर वाला जो होता है हमको साइन दिखाता है, गाइडेंस दिखाता है कि हमको एक्चुअली ये चीज चाहिए होता है। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीपर मीनिंग इनसाइड अंडर इट, देन ओनली वी विल बी एबल टू एड्रेस इट। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना कि जो चीज हमें ज्यादा चैलेंज करती है तो ऑटोमेटिकली वही चीज हमें वो शिफ्ट जो है वो चेंज हम में लाती है। उसी ने हमें चैलेंज भी किया, लेकिन बिग चेंज भी वही चैलेंज था हमारे लिए, जो हम उस पस्ती से जो हम निकले वो उसी चैलेंज से हमें निकाला। तो वेल सेड, बहुत अच्छे से आप एक वही मुझे लगता है आज जो जो प्योर गोल्ड नगेट्स आप बांट रहे हो सच में। यार बहुत ज्यादा विजन आपका बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो ये। जब मेरा एक लास्ट ही मैं बोलूंगी क्वेश्चन, क्योंकि how to let go of emotion that we tend to hold to for years, जो हमने रखा है, and unable to let go, क्योंकि let go ही हम नहीं सीखते हैं let go। राइट। और कभी कभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, जब बहुत डिफिकल्ट इमोशन होता है हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, ना किसी दोस्त से, ना पेरेंट्स से, ना भाई बहन से, किसी से हम शेयर नहीं कर पाते, तो अपने अंदर दबा के रखते हैं और पूरा दिन ऐसे ही जाता है, सालों साल ऐसे ही जाता है, वो सारी चीजें जो है हम अपने अंदर दबा के रखते हैं। तो एक जो सिंपल चीज है वो कर सकते हैं कि हर रोज जर्नलिंग कर सकते हैं। मैं लॉकडाउन के पहले तक आई हैड नो कनेक्शन विद जर्नलिंग, बट लॉकडाउन में मैंने सीखा ये ट्रिक एंड आई वॉज फीलिंग सो रिफ्रेश्ड एवरी डे एंड आई वॉज हैविंग मोर एनर्जी टू डू, आई वॉज मोर प्रोडक्टिव। मैं अपना ऑफिस का भी काम कर रही थी, मैं कुरान भी पढ़ रही थी, मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी कर रही थी। आई वॉज एबल टू डू सो मच, एबल टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, जो कि जिंदगी में कभी मैंने नहीं किया था। मैं सुबह के 4-5 बजे उठ पा रही थी। देयर इज सो मच पॉजिटिव एनर्जी। सो हर रोज सोने के पहले जस्ट राइट डाउन जो भी हुआ आज दिन में, गुड बैड या जो भी फील कर रहे हो, रैंडमली कुछ भी, जस्ट हैव अ ब्लैंक पेपर एंड पेन एंड जो भी दिमाग में आए, दिल में आए, जस्ट उतार दो उसमें। राइट, एक ये चीज है टू फॉर डेली क्लेंजिंग।
एंड और एक चीज है, जो सालों की जो चीजें हैं जो हमारे अंदर स्टोर होके हैं, ट्रॉमा हो गया, अब्यूज हो गया, जो बहुत डिफिकल्ट इमोशंस होते हैं, जो हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं किसी को, कुछ गलत हमारे साथ हो गया, तो उसके लिए एक टेक्निक है जो काउंसलर्स, कोचेस, साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं. दिस इज वन ऑफ द एनएलपी टेक्निक्स एज वेल, कि identify the emotion that you're feeling, and it is against which person you're feeling. Identify that the emotion and the person that you're feeling against. Okay, and then write down detail कि आपके साथ क्या हुआ था, what you are feeling, what you want to say. Be as petty as possible. You don't have to give it to that person or say it to that person. Just write it on paper. ऑल्सो दिल का जितना भी भड़ास है, कुछ भी खराब बोलना है, गलत बोलना है, विदाउट एनी जजमेंट, जस्ट उसको पेपर में उतार दो एंड टीयर इट एंड बर्न इट. जस्ट लाइक जब वी मेट में हम लोगों ने देखा था, एक सीन था, इट फेल्ट वेरी चाइल्डिश एंड क्या है, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल Yeah. psychological and NLP technique. So you can tear it, the paper, burn it, either flush it, or you can flow it in your tap, एंड इट Yes. रिलीजेस, एज आई टोल्ड, कि हमारा बॉडी स्टोर करता है इमोशन. तो इससे क्या होता है, अपने बॉडी से, दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो है वो पेपर में उतर जाता है. एंड विजुअलाइज एंड फील व्हेन इट इज बर्निंग, फील दैट इट इज बर्निंग ऑल द नेगेटिव इमोशन. एंड व्हेन जब पानी में बहा रहे हो, इट इज टेकिंग अवे ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी, एंड ऊपर वाला जो है, इट इज रिप्लेसिंग इट विद पॉजिटिविटी. Positive. तो yeah, so it detoxes you, and sometimes you have to do it multiple times. अगर ये नहीं एक बार में नहीं हो रहा है, but this is transformative. I can tell you from experience. जो experience किए हैं, they will all vouch for it, that it is a transformational exercise. एंड जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा टाइम लगता है आपको लिखने में, rather than सोचने में. सोचने में हम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और बहुत टाइम चला जाता है, एंड इट इज नॉट यूजफुल. सो व्हेन यू राइट इट, एक तो आप सोच पाते हो ज्यादा देर, यू कैन फील द इमोशन फॉर लॉन्गर टाइम, एंड feeling is healing. And if you feel like crying during it, please feel free to cry, because crying actually releases stress hormones from our body. So what happens is, usually after crying we feel very lighter and we feel better. ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा बिना कभी बिल्कुल लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ये लेटर लिखा हुआ है, मैंने भी फाड़ा है, मैंने भी जलाया है, और ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव. Yes, और yes. मैंने तो बहुत ही एक डियर वन के लिए लिखा था, और फ्रॉम दैट डे मैंने पाया अपने में कि अब मैं उनसे आराम से बात कर पाती हूँ. अब मुझे उतना बुरा नहीं, क्योंकि जो ही मैं उनसे बात करती थी मुझे सारा याद आ जाता था, लेकिन अब मैंने उस चीज से रिकवर कर लिया है. और भी मुझे लगता है ऐसे भी हम कर सकते हैं कि हमारे हमारे क्या हर दीन में जो है, हर रिलीजन में है कि अपना सजदा दो, अपना हेड डाउन करो. हर रिलीजन में ये है, सिखाया गया है कि हमें अपना सर नीचे रखना चाहिए, और जब भी हम सर नीचे रखते हैं तो हम पूरी ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आती है, और ऑटोमेटिक हमारा जो नेगेटिव इमोशन है वो चला जाता है. चला जाता है, नेगेटिव चार्जेस जो है वो चले जाते हैं, एनर्जी हीलिंग एक तरह से हो जाता है हमारा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी. Yes. थैंक यू सो मच. आपने ये जो है प्योर गोल्ड हमारे साथ जो बांटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर विजडम, योर नॉलेज. कितना सारा आपने हमारे साथ बांटा. बिफोर वी रैप अप, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो जाहिदा जी if you want more clarifications on this thing, this mental well-being, narcissist society जो भी है, ये बहुत ज्यादा है. और मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है. आज हम जो आगे आ रहे हैं, हमें इस पे बात करनी चाहिए. जब बात करेंगे तो तब उन तक, जो ये लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचेगा, और मे बी वी बिकेम द जरिया कि वो लोग भी सुधर जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबको वो लोग सुधर. सुधरे नहीं सुधरे, बट उनके अब्यूज का जो लोग शिकार है, टारगेट बनते हैं, शिकार बनते हैं, दे विल गेट मोर एम्पावर्ड एंड दे विल नो हाउ टू डील विद देम.
and that is very necessary. क्योंकि ये नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं इनको सिर्फ अपना फायदा, इनको ये तो अपनी फैमिली में भी उनको भी ये एज अ टूल देखते हैं, उनको भी एज अ फैमिली मेंबर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको वो जो उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज से वो सिर्फ वही करते हैं। और कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। Thank you so much. Jazakallahu khairan kaseera, and also in coming days I will try to do more deeper videos on these few negative emotions. So I'm more than happy. I'm more than happy to have you. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.